banking sector, cement sector can take the advantage. The oil, if obviously the way the government is planning. JS ग्लोबल ने जो एक नंबर दिया था जून 2025 एंड 2025 दिसंबर के लिए इंडेक्स का नंबर, यू स्टिल स्टिक टू दैट? हाँ जी बिल्कुल, हमारा टारगेट था 160,000 का बाय दिसंबर 2025. वी हैव जस्ट हैड अ ट्रेमेंडस वेरी गुड IMF प्रोग्राम, जहाँ पर हमने देखा कि उन्होंने हमें फ्लाइंग कलर्स के साथ पास कर दिया और दे आर ओके द वे वी आर प्रोग्रेसिंग. So it's a very good initiative in terms of Pakistan देखा जाए, and we are very confident that this will continue. But what happened was this fiasco of Trump, this reciprocal tariffs came in, and across the world we have witnessed market panicking and everything, and now suddenly there is a stop. That I think our government's approach is very good. I would really appreciate the fact अगर हम इस टैरिफ में जाते भी हैं तो जो हर्ट हो रहा है, जहाँ पर हम मेजॉरिटी ऑफ द टेक्सटाइल्स जो कि हमारी एक्सपोर्ट होती है, बाकी जो हमारी कंपनीज़ हैं वो definitely Pakistan will get advantage of the oil. You see the oil is already coming down, and we have witnessed that. But that is also an advantage for Pakistan since we are a net importing country. Dollar, I see, obviously that's the pressure we always carry. So if it's softening up, so this is always good for the market. I am very hopeful and very positive for the Pakistan, and for the investors I would recommend कि जब भी इस किस्म की वॉलेटिलिटी होती है और अनसर्टनिटी होती है तो यू ऑलवेज गो बैक टू द बेसिक्स एंड स्टिक टू द फंडामेंटल स्टॉक्स, और डिविडेंड स्टॉक में लिवरेज को कम कर दें और स्टे इन्वेस्टेड ऑन द डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स एंड फंडामेंटल, बिकॉज व्हेनेवर देयर इज़ अ रिकवरी दोज स्टॉक्स जिनकी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होंगे, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, दे आर द वंस हु विल कम बैक वेरी सून. मैं अपने इन्वेस्टर्स को यही कहना चाहूँगा कि मार्केट इस एसेट क्लास को हमेशा एक स्पेकुलेटिव की नज़र से देखा गया है कि ये एसेट क्लास एक स्पेकुलेटिव, जबकि ये इट्स अ प्रॉपर इन्वेस्टमेंट होराइजन, वन ऑफ द एसेट क्लासेस वेयर यू कैन सेव एंड इन्वेस्ट. It can also provide a good dividend yield. With the growth of the company, your investments grow, you will get the returns in terms of dividend, in terms of capital investments, and that will continue. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. नाज़रीन, a lot is happening on the canvas of the capital market and economy. सबसे बड़ी चीज़ जो मईशत में हो रही है वो 2028 का एक टारगेट है जिसके लिए सारे बैंक्स, सारे इकनॉमिक इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं कि वो अपने प्रोसेसेस को इस्लामाइज़ करें, इस्लामिक फ़ाइनेंस से आशना करें. One of the bigger institution of Pakistan happens to be the JS Global. JS Global is also taking this initiative. हमने समझने की कोशिश की कि what is next, what are they doing, what are they contemplating, and going forward 2028 के लिए JS Global के मिशंस और अग़राज़ व मक़ासिद क्या हैं. इन चीज़ों को जानने समझने के लिए we have invited none else than the CEO of the JS Global, Mr. Khalil Usmani. Khalil Usmani, welcome to the show and Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Thank you very much, Sani sir, for having me. Great. Before we move on to the on the topic, I would want you to kindly express something about yourself. हमारे नाज़रीन को आगाह करें about your career, the JS Group, and what as of now you think कि पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल इंडस्ट्री है उसकी ट्रांजिशन इस्लामाइजेशन की तरफ, इस्लामिक फाइनेंस की तरफ कैसे हो रही है? Thank you very much. So I've been associated with this market for last 20 years, taken in the industry for last 20 years now, and I am associated with JS Global for 12 years now, alhamdulillah. And we have seen, and witnessed a lot of good prime time, during this period, alhamdulillah. So what we have, visioned, you have seen कि State Bank का vision है 2028 में towards Islamization, कि पूरी इंडस्ट्री को चेंज कर देंगे. सो टूवर्ड्स दैट वी आर थिंकिंग एंड प्लानिंग टू कम अप विद समथिंग जो कि प्रोवाइड करें हमारे इन्वेस्टर्स को एक एथिकल इन्वेस्टिंग, एंड दैट्स वाई वी हैव कम अप विद दी आवर ऐप जो कि इस्लामिक पूरी तरह से इस्लाम के ऊपर वो करती है, एंड इट्स सर्टिफाइड बाय मिज़ान, एंड हमारे शरिया एडवाइज़र्स हैं अल हिलाल. When you say ethical investment, ethical investing, what do you mean by that? Are you referring to a particular sect? Are you referring to a particular way of thinking, or are you referring to a particular way of investing? Ethical is a word we use for Islamic investment actually.
ठीक है. बेसिकली आवर शरीयत व्हाट वी हैव डन इन द इस्लामिक हिस्ट्री, what we have witnessed कि over the years, over the period of time, जिस तरह इस्लामिक प्रोडक्ट्स ग्रो हुई हैं पिछली एक सदी के अंदर, और आपने जिस किस्म की इन्वेस्टमेंट देखी है इन ऑल इस्लामिक एसेट क्लासेस, तो हम इस्लामिक एसेट क्लासेस जो कि शरिया के उसूलों पे पाबंद हैं, जो कि अलाउड हैं एंड अप्रूव्ड हैं बाय शरिया बोर्ड, तो उसको हम कहते हैं एथिकल इन्वेस्टिंग. It's not related to any sect or anything. It's related to Islamic. Understood. पर जो जेस ग्लोबल है इसका बुके ऑफ सर्विसेज काफ़ी वास्ट है. आप इनफैक्ट कुछ इंटरेस्ट लेड प्रोडक्ट्स जो हैं उसकी सर्विसेज में भी हैं, आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में भी हैं, आपके ग्रुप का बैंक भी है, और आपके जो क्लाइंट्स हैं 2018 में हमने देखा कि सबसे बड़ी सेटलमेंट जेस ग्लोबल ने की, वो सारे के सारे आर नॉन मुस्लिम, दे आर ऑल क्रिश्चियंस एंड अदर्स. So when you say ethical investing and going forward you have a vision and mission, are you trying to imply कि वो सारी services, वो सारे customers जो कि in your words ethical or non-ethical है, उन सब की bouquet of services is not going to impact it? नहीं जी, पहले तो बहुत शुक्रिया आपका. अल्हम्दुलिल्लाह JS Global has always been a pioneer and we have been market leader and we are proud to say that always कि हम हर प्रोडक्ट में हमेशा कोशिश की है कि हम आगे रहें, चाहे वो ETF हो, चाहे वो अब इस्लामिक प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं हम. सो व्हाट आई मेंट इज़ दैट कि देयर इज़ ऑलवेज, ये इस स्टॉक ब्रोकरेज इंडस्ट्री के अंदर देयर इज़ अ गैप कि जिस तरह हमने इस्लामिक बैंकिंग देखी, हमने एसेट मैनेजमेंट के अंदर इस्लामिक फ़ंड्स देखे हैं, ब्रोकरेज इंडस्ट्री में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मौजूद था जो कि आपको इस्लामिक इन्वेस्टमेंट, जो कि इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस दे कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो प्योरली शरिया कंप्लाइंट है, जो स्टॉक आप ले रहे हैं वो शरिया कंप्लाइंट है और आप शरिया के उसूल के मुताबिक T+2 पे सेटलमेंट के बाद बेच सकते हैं. उसमें कोई लिवरेज नहीं होगी, उसमें कोई फ्यूचर नहीं होगा. सो दैट इज़ व्हाट आई मेंट. सो वी इंट्रोड्यूस्ड वन ऑफ द प्रोडक्ट जिसके अंदर जिन लोगों को, क्योंकि देयर इज़ अ ह्यूज मार्केट फॉर शरिया व्हाट वी हैव विटनेस्ड ओवर द इयर्स, तो जिन लोगों को शरिया इन्वेस्टमेंट करनी है दे कैन ईजीली कम अप एंड download our app and they can do easily Sharia compliant investment. And when you say this, are you trying to say कि वो स्टॉक जो कि MI ऑल शेयर इंडेक्स में नहीं है या शरिया कंप्लाइंट नहीं है, ये आप उस स्टॉक के अलावा किसी और स्टॉक में बाय सेल का ऑर्डर नहीं डाल सकेंगे? Then you are also trying to say कि उसकी जो बाइंग और सेलिंग के अंदर जो डिलीवरी की रिक्वायरमेंट है, पूरे पैसे जमा करने की रिक्वायरमेंट है, ये सारी की सारी चीज़ें भी योर ऐप टेक्स केयर ऑफ दैट. या एग्जैक्टली, दिस इज़ व्हाट आई मीन कि जितने शरिया कंप्लाइंट स्टॉक्स हैं विच इज़ ऑलमोस्ट 50% ऑफ द बोर्ड राइट नाउ, तो वो सारे के सारे उसमें अवेलेबल हैं. जिस तरह मैंने पहले भी मेंशन किया कि इट इज़ अप्रूव्ड एंड हमारे जो शरिया एडवाइज़र हैं अल हिलाल एंड इट्स सर्टिफाइड बाय मीज़ान बैंक एज वेल. सो इट्स आपका सारा का सारा बोर्ड जो है वो शरिया इन्वेस्टेड, जो शरिया स्टॉक्स हैं वो हैं, और आप बिल्कुल इस्लामिक उसूल के मुताबिक T+2 की बेसिस के ऊपर पेमेंट के अगेंस्ट आप परचेजिंग कर सकते हैं और उसको सेल कर सकते हैं आफ्टर T+2. देयर इज़ नो लेवरेज. आर यू ट्राइंग टू से कि अगर मेरे अकाउंट में 100 रुपये हैं और मैंने 110 रुपये की का सौदा बाय कर डाला है तो वो सौदा नहीं जाएगा? ना, बिल्कुल ऐसे ही है कि जितना आपके पास कैश अवेलेबल है उसी में इन्वेस्टमेंट कराएगा और उसके ऊपर वो लेवरेज में आपको काम नहीं करवाएगा. तो मैंने जो शेयर आज ख़रीदा है मैं उसको आज बेच भी नहीं सकता? नहीं, बिल्कुल भी नहीं बेच सकते. डे ट्रेड नहीं अलाउड है, T+1 भी नहीं अलाउड है एज़ पर द सेटलमेंट रूल्स, जो हमारे करंट सेटलमेंट रूल्स हैं. T+2 की बेसिस पे जब ये एक सौदा सेटल हुआ है तो उसके बाद आप बेच सकते हैं. ये जो आपका प्रोसेस है जिसको आप शरिया कंप्लाइंट प्रोसेस कहते हैं, इसकी जो ओनरशिप है इसके पीछे डू यू हैव अ बैकिंग लाइक सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन और द स्टॉक एक्सचेंज और सम शरिया एडवाइज़र? हु डू यू हैव हु बैक्स इट अप? बिल्कुल, जैसे मैंने अभी मेंशन किया कि वी हैव अ शरिया एडवाइज़र्स, मीज़ान बैंक की सर्टिफिकेशन है एंड ऑल्सो अल हिलाल जो है वो हमारे शरिया एडवाइज़र्स हैं. ओके, सो पाकिस्तान से बाहर जो आपके पास इन्वेस्टमेंट आती है उसमें भी कोई क्वांटम है? जैसे पाकिस्तानी UAE में है, सऊदी अरेबिया में है, अमेरिका में है, यू हैव सम काइंड ऑफ एम्पेरिकल एविडेंस के पास में आपके पास रिक्वायरमेंट्स आई हों कि दे वांट टू इन्वेस्ट इन अ शरिया कंप्लाइंट मैनर? बिल्कुल, वी हैव विटनेस्ड. हमने RDA में देखा कि मीज़ान बैंक जब RDA उसने स्टार्ट किया था तो ऑल शरिया कंप्लाइंट कम्स थ्रू द मीज़ान बैंक एंड वी हैव विटनेस्ड कि उसमें काफ़ी उसमें काफ़ी इंटरेस्ट नज़र आया.
एंड दैट्स वाई वी विटनेस कि इवन आपका जो गैर मुल्की पाकिस्तानी है जो कि इन्वेस्ट करना चाहते हैं, दे कैन डायरेक्टली कम एंड हैव दैट ऐप डाउनलोडेड एंड दे कैन इन्वेस्ट ईजीली. So is it just because of all the banks are trying to have window or rather moving towards Islamic banking, or you as a JS Global thinks that this is necessary because जो investor drive है उसमें भी अब ये बात सामने आ रही है कई क्वार्टर से कि जो नया इन्वेस्टर है वो शरिया कॉन्शियस बहुत ज़्यादा है. देखिए, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि स्टेट बैंक का विजन 2028 है जिसमें वो सारी बैंकिंग सेक्टर को इस्लामिक करने चाह रहे हैं. सो दिस इज़ आवर ओन आइडिया दैट वी हैव टू कवर दिस स्पेस, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट है और एक बहुत वास्ट पॉपुलेशन है जो कि इस इंतज़ार में स्टॉक की इन्वेस्टमेंट नहीं करती कि वो कंप्लाइंट है नहीं है, दे आर नॉट श्योर अबाउट इट, सो दे कैन बी श्योर अबाउट इट. व्हेन यू से कि बहुत वास्ट participatory room मौजूद है, there could be a large number of people who may be willing to invest in the capital market, Islamic capital markets. Do you have some kind of numbers to back them up, or you have some kind of a view कि future में जो इसमें growth potential है वो किस तरह का है? देखिए, हमने देखा है जिस तरह कि पिछली एक सदी में जिस तरह ग्रोथ हुई है इस्लामिक प्रोडक्ट्स की, जिस तरह से इस्लामिक बैंकों ने ग्रो किया, जिस तरह से इस्लामिक म्यूचुअल फंड्स ने ग्रो किया, जिस तरह से आपने अमेजिंग नंबर्स देखे हैं. सो देयर इज़ अ ह्यूज पोटेंशियल फॉर दैट एंड दैट इज़ द रीज़न वी आर ट्राइंग टू टैप ऑल दोज पीपल जो कि सिर्फ इस वजह से डायरेक्ट स्टॉक का अकाउंट नहीं खुलवाते थे कि शरिया कंप्लाइंट है नहीं है, तो दे विल बी मोर कॉन्फिडेंट दे कैन हैव देयर ओन ऐप एंड दे कैन ईजिली इन्वेस्ट इन शरिया कंप्लाइंट स्टॉक. खलील, वक्त हो जाता है छोटे से वक्फे का. वक्फे के बाद हम चाहेंगे कि आपके साथ टच बेस करें कि आपकी जो एप्लीकेशन है इसमें किस तरह के फीचर्स हैं. व्हाई वुड यू वांट अ कन्वेंशनल यूज़र टू कंसिडर मूविंग टुवर्ड्स दिस न्यू इनिशिएटिव? नाजरीन, डोंट गो नोवेयर, लेट्स मीट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक. वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में वी विल ट्राई एंड टच बेस विद द फीचर्स ऑफ द एप्लीकेशन विद खलील उस्मानी. खलील उस्मानी, ओवर टू यू. हम चाहेंगे कि हमारे नाज़रीन को आप थोड़ा सा बताएं, रन डाउन करें कि ये जो आपकी नई एप्लीकेशन है इसमें आप किस तरह के फ़ीचर मुतारिफ़ करा रहे हैं एंड वाई वुड यू वांट अ कन्वेंशनल यूज़र टू कंसिडर मूविंग टुवर्ड्स दिस? थैंक यू अगेन. देखें, पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि दिस इज़ टेक्नोलॉजी इज़ द नेक्स्ट बिग थिंग, ठीक है. और आप अब यूज़र्स को हर चीज़ अवेलेबल है. हमारा जो नया यूज़र है वो सेवी है मोबाइल यूज़ करने को, वो हर चीज़ के लिए, हर काम के लिए मोबाइल को यूटिलाइज़ करता है. सो दैट्स वाई हम जो प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं, जो हमारी ऐप है, उसके अंदर हमारी कोशिश रही है कि वो उसमें आपको रिसर्च भी अवेलेबल हो, उसमें आपको टेक्निकल चार्टिंग भी अवेलेबल हो, हर चीज़ अवेलेबल हो. और उसी ऐप में, जो हमारी करंट ऐप है, उसी में हमने एक टॉगल दिया है कि इफ़ आवर करंट यूजर्स वांट्स टू शिफ्ट टू शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टिंग, दे कैन शिफ्ट टू इस्लामिक मोड. और वंस दे शिफ्ट टू इस्लामिक मोड, तो आपकी सारी शरिया की जो सैंटिटी है वो उसके अंदर इम्प्लीमेंट हो जाएगी. सो दैट्स वाई. सो हम अपने करंट यूज़र्स को भी ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं कि इफ़ एनी वन ऑफ देम, जो हमारा करंट client base है, they want to use that app, they can use that app, and obviously the idea is to tap all those clients जो कि इस वजह से नहीं आ पाते या उनको किसी वजूहात की वजह से नहीं इन्वेस्ट कर पाते, and they want to have that sharia in on board. So उनको हमारा असल मकसद ये कि उन एसेट क्लास को टैप करना. ये बताएं खलील कि जो स्टॉक्स हैं, शरिया कंप्लाइंट स्टॉक्स हैं जिसका बहुत चर्चा बातचीत होती है, क्या उसके जो नंबर्स हैं, उसके जो कैपिटल गेन्स हैं, उसके जो रिटर्न्स हैं और उसकी जो रिस्क प्रोफाइल है, उन सबको देखते हुए भी डज इट साउंड्स वेल और डज इट बोर्ड्स वेल टू राइड ऑन टू दिस ड्राइव? बिल्कुल. आप देखें, जो शरिया कंप्लाइंट स्टॉक होता है, ऑटोमेटिकली एक तो आपके पार्टिसिपेशन बढ़ गई है, बिकॉज शरिया का पूल इज़ बिगर, तो आपकी पार्टिसिपेशन बढ़ जाती है. एंड शरिया कंप्लाइंट स्टॉक्स जो हैं उनको बस द नंबर्स आर ग्रोइंग, देयर द प्रॉफिट्स आर ग्रोइंग, दे आर डूइंग वेल. आप तो इस वजह से कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आता है कि उनके रिटर्न्स बेहतर हैं, तो इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंट होते हैं कि दे स्टिक टू दोज पर्टिकुलर बिजनेस जो कि शरिया के मुताबिक चल रहे. We often keep hearing this tone and term के toxic asset
काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट बियरिंग एसेट. सो यू हैव अ व्यू ऑन दैट कि आपके पास क्राइसिस में ऑफन इट हैज़ बीन सीन कि जो एसेट इंटरेस्ट बेस नहीं थे उन स्टॉक्स के अंदर कम से कम गिरावट देखी गई, उन स्टॉक्स के अंदर कम से कम मसाइल देखने में आए, या जिन स्टॉक्स ज़्यादा लेवरेज थे वहाँ पे ज़्यादा मसाइल देखने में आए. यू हैव अ व्यू ऑन दैट? देखें, दैट्स अ वेरी नेचुरल थिंग. जहाँ आप लेवरेज की बात करते हैं, जो चीज़ें ऑब्वियसली जो लेवरेज ऑटोमेटिकली वो लोग लेते हैं जो आपका वीक होल्डर्स होते हैं. दे वांट टू यूटिलाइज दोज लेवरेज एट सर्टेन टाइम. और जब इस किस्म के क्रैशेस जिस तरह से हमने देखा, मार्केट वॉलेटाइल है काफ़ी ऊपर नीचे, तो उसमें जो पैनिक्स आते हैं दैट इज़ बिकॉज ऑफ द लेवरेज होल्डर्स. सो जहाँ पर आप देखते हैं कि जो लॉन्ग टर्म होल्डर्स हैं, जो अपने एसेट्स को एक लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं और उनका व्यू होता है ऑन द सर्टेन कंपनीज, तो वो हमेशा से दे आर ऑलवेज द विनर्स. सो दैट्स व्हाट वी हैव विटनेस ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड. और हम अपने इन्वेस्टर्स को हमेशा ये बात कहते हैं कि जब इस किस्म की वॉलेटिलिटी मार्केट में आती है तो ऑलवेज गो बैक टू द बेसिक्स, जहाँ पर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स लें जिनकी डिविडेंड यील्ड हो, अच्छी हो, और स्टिक टू द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स रादर देन ट्रेडिंग और स्पेकुलेशन. तो ऑटोमेटिकली आपको ज़्यादा कंफर्ट मिल जाता है. So when a person is registering himself or herself on this particular app, he gets the due guidance कि कौन सा स्टॉक ठीक है, कौन सा प्रोसेस सही है, बाय सेलिंग में पैसे होने चाहिए, ये सारी चीज़ें. इस प्रोसेस के लिए यू वांटेड टू हैव अ शरिया एडवाइज़र, और जो स्टॉक्स की सिलेक्शन है उस पर यू आर रिलाइंग ऑन द एक्सचेंज. नहीं, देखिए, प्रोसेसेस तो हमारे बने हुए हैं. Okay. कि आज भी कोई इन्वेस्टर्स आता है तो ऑब्वियसली देयर आर ट्रेडर्स टू गाइड देम व्हाट टू इन्वेस्ट, व्हाट टू बाय. व्हेन यू टॉक अबाउट ओनली शरिया और स्पेसिफिक नीड होती है हमारे क्लाइंट्स की कि शरिया, तो हम ऑब्वियसली शरिया स्टॉक्स की लिस्ट उनसे शेयर करते हैं, उनको बताते हैं कौन से स्टॉक हैं. व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ दिस ऐप कि आप अपनी ऐप में व्हेन यू आर ओपनिंग दिस शरिया कंप्लाइंट जेस इन्वेस्ट प्रो, सो दैट गिव्स यू द कॉन्फिडेंस कि जितने ऐप हैं दैट इज़ ऑलरेडी अप्रूव्ड, चेक्ड कि ऑल शरिया कंप्लाइंट की उसको फॉलो कर रहे हैं. और ये जिस तरह मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि हमने सर्टिफिकेशन ले ली है, हमारे एडवाइजर्स अल हिलाल और मीज़ान बैंक से सर्टिफाइड है. सो दैट्स वाई वी हैव दिस कॉन्फिडेंस कि अ इन्वेस्टर कैन कम अप एंड दे कैन डू इट ऑन योर ओन. Understood that from onboarding to trading you've got processes all audited. Going forward you have a penetration strategy? सर बिल्कुल, हमारा प्लान है. हम बड़े एग्रेसिव हैं. वी आर वन ऑफ दी ब्रोकरेज हाउस जो कि इस इन्वेस्टर बेस को बढ़ाने में बहुत एग्रेसिव है. और हमारा विजन है कि हम इस स्टॉक की जो टोटल इन्वेस्टर साइज़ को 3 to 4 टाइम्स कर दें अगले 4 से 5 साल में, जिसके लिए हमारी कैंपेन्स भी आ रही हैं. ठीक है, हम बड़े एग्रेसिवली कैंपेनिंग करें और हम इन्फोमर्शल्स की बजाय इन्फोमर्शल्स पे बिलीव करते हैं रादर देन कमर्शियल्स, कि हम उनको गाइड करते हैं कि समझ के सरमायाकारी की समझदारी इज़ और टैगलाइन कि हम किस तरह से समझ के इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से स्टॉक्स लेने चाहिए, रादर देन जस्ट गोइंग आफ्टर यू नो द टॉक ऑफ द टाउन कि भाई ये चल रहा है तो ये स्टॉक ले लें, रादर देन अंडरस्टैंडिंग द कंपनी एंड देन इन्वेस्ट इन दैट स्टॉक मार्केट. A number of ETFs, are you contemplating to launch an Islamic ETF as well? देखिए, हम बड़ा इसमें प्राउड फील करते हैं बिकॉज वी आर दी ओनली वन ऑफ मार्केट मेकर इन ETFs एंड वी आर ऑलवेज बीन स्टूड अप फॉर एनी सच डेवलपमेंट, PSX or you know our own selves we made. So yes, we are planning. There are a number of things are in pipeline. Right. There are already Islamic ETFs as well in the market and they are doing good. So yes, we can plan and we are looking forward towards it. So if you were to compare the results and performance of an Islamic index and a conventional index, who would you vote for? A dividend discounted or dividend accumulated index versus Islamic or a conventional index? I think you know, usually it's a vast field. Yeah. You see it's a vast field and you know at this very moment I cater, you know, people, different asset classes, different investors follow different strategies and they always look for all such kind of index depending on their nature. So I would not say that who is better than amongst what. Okay. So it depends on the nature of the investment, how people wants to stay in the conventional field or they want to go for the Islamic. But history has told us that KMI all share and KMI 30 remain better than KSE 30 Absolutely. and KSE 100. So this is probably one of the reasons that you thought about it and you wanted to move forward with it. Absolutely. Going forward, investor base के ऊपर आपने बातचीत की.
इसका क्वांटम आपको किस तरह का दिखता है? अभी 3,25,000 का इन्वेस्टर बेस है. गोइंग फॉरवर्ड यू सी मोर इन्वेस्टर कमिंग टू यू जस्ट बिकॉज you have joined this club of Islamic finance? बिल्कुल सी, हम बड़े कॉन्फिडेंट है इस चीज़ के अंदर, और मैंने जिस तरह आपको बात की कि हम लोग बड़ा इसके ऊपर काम कर रहे हैं, इन्फॉर्मर्शियल्स के ऊपर, और हम ना सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ के लेवल के ऊपर जा रहे हैं, लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं, बल्कि इस किस्म की प्रोडक्ट लाके एक मासेस को रीच आउट कर रहे हैं. सो हम बड़े एग्रेसिव हैं, और जिस तरह मैंने आपको कहा कि हमारा विज़न है कि मैं इस इंडस्ट्री के साइज़ को 3 to 4 टाइम्स बढ़ाना चाहता हूँ अगले 4 से 5 साल के अंदर. सो वी आर एग्रेसिव, वी आर वेरी एग्रेसिव. और अगर आप ऑलरेडी देखेंगे तो वी आर वन ऑफ द ब्रोकरेज हाउस जिसके नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स न्यू अकाउंट ओपनिंग आर ऑलमोस्ट हाईएस्ट for last 2 years. So we are very aggressive on these lines. Are you also planning road shows within and outside Pakistan? बिल्कुल हमारा ये हमेशा से फोटे रहा है, और हम हमेशा से इस चीज़ के ऊपर काम करते रहे हैं कि पाकिस्तान में भी अवेयरनेस के ऊपर मुख्तलिफ़ शहरों में यूनिवर्सिटीज़ में जाया जाए. और हमने बड़ी एक लार्ज इन्वेस्टर्स बेस बनाई, और हम अपनी प्रेजेंस भी अक्रॉस पाकिस्तान बढ़ा रहे हैं with the muscles we have from our sponsors. So we are utilizing that, और हम अपने अक्रॉस पाकिस्तान नॉर्थ साइड पे भी, पंजाब साइड पे भी और साउथ में भी अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं, ताकि आप जाके लोग अवेयरनेस दें और दिस एसेट क्लास को यूटिलाइज़ कराएं कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग कर सकते हैं और सेविंग का एक कॉन्सेप्ट डेवलप कराएं, तो दे कैन कम अप एंड इन्वेस्ट एंड सेव. Do you have some kind of numbers of women participation into the product, your product base, Islamic or conventional? अभी तक हमने इस किस्म की कोई वर्किंग नहीं की है कि इसको हम कैटेगराइज करें apart, but what we have seen that over this, the way the females are coming in, the way they are we are witnessing, we are also planning to have a specific branch going forward for them and giving them. So yes, I think it's going to be a very good number if we come to that point. Great, understood. खलील, वक्त हुआ चाहता है छोटे से वक्फे का. वक्फे के बाद वी विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड एंड इन फैक्ट विल ट्राई एंड डिग इनटू कि मार्केट के ऊपर आपका क्या व्यू है, जेस ग्लोबल मार्केट को कैसे देखता है. वी विल जस्ट टेक 5 to 7 minutes ऑन अ मार्केट राउंड अप. नाज़रीन, डोंट गो नोवेयर, लेट्स मीट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक. वेलकम बैक नाज़रीन. नाज़रीन, प्रोग्राम के इस सेगमेंट में वी विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड जेएस ग्लोबल्स व्यू ऑन द मार्केट. देयर आर लॉट ऑफ टॉक्स अबाउट द मार्केट, करेक्शंस इन द मार्केट. सम पीपल हैव अ व्यू कि बाज़ार को बहुत ईजिली 124 के लेवल तक जाना चाहिए, बट ट्रम्प्स टैरिफ ने अ लॉट हैज़ चेंज. सो खलील उस्मानी, ओवर टू यू. हाउ डू यू फील अबाउट द मार्केट एंड गोइंग फॉरवर्ड, व्हाट इज़ योर व्यू टिल द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर, i.e. जून 2025? थैंक यू अगैन. सर देखिए, हमारा तो बड़ा कॉन्फिडेंट व्यू था द वे आवर गवर्नमेंट इज़ पेसिंग आउट आवर सेल्फ, एंड वी हैव जस्ट हैड अ ट्रिमेंडस वेरी गुड IMF प्रोग्राम, जहाँ पर हमने देखा कि उन्होंने हमें फ्लाइंग कलर्स के साथ पास कर दिया, और दे आर ओके द वे वी आर प्रोग्रेसिंग. सो इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तान देखा जाए, एंड वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि दिस विल कंटिन्यू. बट what happened was this fiasco of Trump, this reciprocal tariff schemes and across the world we have witnessed market panicking and everything, and now suddenly there is a stop. That I think our government's approach is very good. I would really appreciate the fact, because what we are doing right now is trying to find the opportunity between the lines. How can we take advantage of that? So I am very hopeful and very positive for the Pakistan, and for the investors I would recommend कि जब भी इस किस्म की वॉलेटिलिटी होती है और अनसर्टनिटी होती है, तो यू ऑलवेज गो बैक टू द बेसिक्स एंड स्टिक टू द फंडामेंटल स्टॉक्स, और डिविडेंड स्टॉक में लिवरेज को कम कर दें और स्टे इन्वेस्टेड ऑन द डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स एंड फंडामेंटल, बिकॉज व्हेनेवर देयर इज़ अ रिकवरी, दोज स्टॉक्स जिनकी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होंगे, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, दे आर द वंस हु विल कम बैक वेरी सून. जेएस ग्लोबल ने जो एक नंबर दिया था जून 2025 एंड 2025 दिसंबर के लिए,
इंडेक्स का नंबर, यू स्टिल स्टिक टू दैट? हाँ जी बिल्कुल, हमारा टारगेट था 160,000 का बाय दिसंबर 2025. सो राइट नाउ द करेंटली बिकॉज व्हाट वी हैव विटनेस कि अगर हम इस टैरिफ में जाते भी हैं तो जो हर्ट हो रहा है जहाँ पर हम मेजॉरिटी ऑफ द टेक्सटाइल्स जो कि हमारी एक्सपोर्ट होती है, बाकी जो हमारी कंपनीज़ हैं वो यू नो डेफिनेटली पाकिस्तान विल गेट एडवांटेज ऑफ द ऑयल. यू लाइक आई सेड कि हम इसको अपॉर्चुनिटी इसमें तलाश करें कि हाउ कैन वी फाइंड अपॉर्चुनिटी where we can utilize those things. How can Pakistan, and I think government response is very good, and they are even planning to send a team to discuss the how we can progress and how we can do that. So I am still though we are reviewing our status, but right now I am very confident the market will continue to perform, stick to the basic fundamental stocks, and I think this will this is obviously the it's more of a technique where they want to discuss and dialogue how can they go further. So now they have already halted it for 90 days I believe, because there is a huge panic across, you have already witnessed, and there is a huge pressure on American economy as well. There is people talking about recession and all, so I think they might hold on this program, or they'll further rethink about it and rethought how we can go it further. So I am confident. Good. How do you look at the dollar and oil? But you see the oil is already coming down, and we have witnessed that that is also an advantage for Pakistan, since we are a net importing country, and there's a huge burden on us on the import of oil. So we think that could be we can take it as an advantage, whatever it is. And in terms of dollar, I see obviously that's the pressure we always carry. So if it's softened up, so this is always good for the market. Great. If you were to suggest few sectors, not the stocks, which 2-3 sectors will be your pick? I think banking sector, cement sector can take the advantage. The oil, if obviously the way the government is planning to work on the circular debt side, how can they regroup that and sit down with the banking sector, how can they resolve this issue? So I'm recommending that people should stick to those sectors. Great. Khalil, program का वक्त चूँकि ख़त्म हो रहा है, we would want you to give a short message to our viewers vis-a-vis your product, your vision and mission, please. Thank you again. देखिए मैं अपने इन्वेस्टर्स को यही कहना चाहूँगा कि मार्केट इस एसेट क्लास को हमेशा एक स्पेकुलेटिव की नज़र से देखा गया है कि ये एसेट क्लास एक स्पेकुलेटिव, जबकि ये इट्स अ प्रॉपर इन्वेस्टमेंट होराइजन, वन ऑफ द एसेट क्लासेस वेयर यू कैन सेव एंड इन्वेस्ट. It can also provide a good dividend yield, 14-15% of dividend yields, and also we have witnessed 100% return in last 1 years. We can witness such rallies. So I want investors कि इसको ये ना समझा जाए कि यहाँ पर एक क्विक गेन के लिए आ जाए. इट्स अ प्रॉपर इन्वेस्टमेंट क्लास जहाँ पर आप अपनी सेविंग का एक सर्टेन पोर्शन रेगुलर बेसिस के ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं. विद द ग्रोथ ऑफ द कंपनी योर इन्वेस्टमेंट्स ग्रो, यू विल गेट द रिटर्न्स इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड, इन टर्म्स ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स, एंड इट विल कंटिन्यू. थैंक यू खलील, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया. नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में खलील उस्मानी जो कि जेस ग्लोबल के CEO हैं, उन्होंने तफसील के साथ बताया कि इनकी जो न्यू प्रोडक्ट है वो फोकस करती है उस पाकिस्तानी को जो शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट के लिए कॉन्शियस है, बहुत अवेयर है, और उसकी ख्वाहिश है कि वो पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट है वो शरिया कंप्लाइंट मैनर में करे. सो जो इनकी प्रोडक्ट है वो एक इन्वेस्टर की ऑनबोर्डिंग से लेके बाय सेल के डिसीशंस तक, और बाय सेल के डिसीशन से लेकर उसकी एक्सिक्यूशन तक, ही मेंशन दैट द प्रोडक्ट इंश्योर्स कि उसके अंदर कोई लिवरेज नहीं हो, कोई नॉन शरिया कंप्लाइंट एस्पेक्ट नहीं हो, और जो यूनिवर्स ऑफ द प्रोडक्ट है वो वही है जो KSE अप्रूव्ड है. नॉट ओनली दैट बट इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसेस ही मेंशनड कि वो भी गो के ज़रूरत नहीं थी, रेगुलेटर की तरफ से कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट दे आल्सो गॉटन देयर प्रोसेसेस अप्रूव्ड फ्रॉम अ शरिया एडवाइजर. दैट अपीयर्स टू बी गुड. ऑन द मार्केट साइड ही मेंशन कि जो उनकी पुरानी कॉल थी इंडेक्स लेवल के बारे में, जेस ग्लोबल उसको अभी भी मेंटेन करता है. बैंकिंग सेक्टर के ऊपर गंगो, दे फील लाइक कि बैंकिंग सेक्टर में बहुत कुछ है. ऑयल और कंज्यूमर सेक्टर हमेशा से लोगों की विश लिस्ट में रहा है. जेस ग्लोबल आल्सो हैज़ दिस ओपिनियन. इस तरह की बातचीत तज्ज़िये का सिलसिला नाज़रीन आइंदा भी जारी रखेंगे. इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.